گزاری کی بات ہے کہ خدا نے آج سبت کا دن ہماری زندگی کے اندر پھر سے بخشا کہ ہم خداوند کی حضوری میں آ سکیں اور آ کے خداوند کی حمد کریں، خداوند کی پرستش کر سکیں، خداوند کے کلام کو سن سکیں۔ ہاللیلویا۔ سو آپ سب خداوند کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ میرے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں لگا دیجیے۔ سو میرے عزیزو، جس طرح پاسٹر بابر صاحب نے آپ کو بتایا کہ پاسٹر آزاد صوبہ صاحب آپ ان کو بخوبی جانتے ہیں، اور میرا نام پاسٹر وقار ہے۔ میں یونائٹڈ پینتیکاسٹل منسٹری کی طرف سے خدا کا خادم ہوں، ادنا سا خادم ہوں، اور مجھے خدا چشتیاں شہر کے اندر، چشتیاں شہر کے جتنے بھی قریب علاقے ہیں ان کے اندر خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور میں خداوند کا بڑا شکر گزار ہوں کہ خدا نے جو آج موقع بخشا کہ ہم لاہور میں آئیں اور اس چرچ کے اندر خدا کے کلام کو بیان کر سکیں۔ یہ خداوند کی بڑی شکر گزاری ہے۔ اور اس کے بعد خدا کے خادم پاسٹر بابر صاحب کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، پاسٹر یونس صاحب کا بھی، جنہوں نے یہ دعوت دی کہ ہم خدا کے زندگی بخش کلام کو شیئر کر سکیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان خادموں کے لیے بھی۔ سو میرے عزیزو، آئیں ہم وقت کو ضائع کیے بغیر خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے گا عہد جدید میں سے، یعنی کہ نئے عہد نامہ میں سے میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 16 باب اور اس کی 19 آیت سے آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، جو سٹوری خدا کے کلام میں سے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، آپ نے بہت مرتبہ خود بھی پڑھی ہوگی۔ ادا کرو۔ ہم 19ویں آیت میں سے دیکھتے ہیں، ایک دولت مند تھا جو اغوانی اور مہنگے کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسور سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا، اور اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر، اے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا تمہارے اور درمیان ایک بڑا کھڑا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر میں بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں،
ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वो भी इसी अजाब की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और एलिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। आमीन। थैंक यू पास्टर साहब। आमीन। मेरे जीजो, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, इस बात के लिए मैं और आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, और इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि खुदा ने आज मौका बख्शा है कि हम खुदा के कलाम को सुने। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास टाइम है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। तो मेरे जीजो, जब भी खुदा का कलाम खुलता है, हमारी तनबीह के लिए, हमारी नसीहत के लिए खुलता है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हालेलुया। और कलाम खुला है, यानी कि खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है। खुदा आज आपसे कुछ बोलना चाहता है, खुदा आज आपको कुछ सिखाना चाहता है, खुदा आज आपको कुछ बताना चाहता है। मेरे जीजो, जो खुदा के कलाम में से आज हमने स्टोरी देखी है, बाज़ हमने बहुत से खादमों से ये सुनी है या पढ़ी भी है। कितने लोगों ने वैसे ये स्टोरी पहले पढ़ी है या सुनी है? आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे जीजो, जिस बात पर आज मैं आपको तवज्जो दिलाने को हूँ, हमारा जो टॉपिक है वो क्या मैंने बताया था? मौत से पहले तौबा। आमीन। क्योंकि मौत के बाद कोई तौबा नहीं, मौत के बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मौत से पहले ही तौबा है। और मेरे जीजो, हमने जो स्टोरी खुदा के कलाम में से देखी, मैं आपको अब साथ साथ पढ़ूंगा और साथ साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि दो शख्सियात इस स्टोरी के अंदर हमें नजर आती हैं। कौन कौन सी? एक दौलतमंद शख्स है और एक गरीब लाजर नाम शख्स है। और मेरे जीजो, इनकी जिंदगी के अंदर आज आप डिफरेंट चेक करें कि इनकी जिंदगी के अंदर डिफरेंट क्या है। एक दौलतमंद शख्स है, बड़ा अमीर शख्स है, जिसको आज हम पंजाबी जबान में कह देते हैं, ए बड़ा लैन लाट है जी। हाँ जी, ऐसे कह देते ना। बड़ा दौलतमंद शख्स है और एक गरीब नासूरों से भरा हुआ शख्स है। अगर हम इसको पढ़ें तो लिखा है कि एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। आमीन। एक दौलतमंद जो शख्स है वो बड़ी खुशी मनाता है, वो बड़ी शान और शौकत से रहता है। आज हम अपने इलाका के अंदर देखें, अपने शहर के अंदर देखें, तो बहुत सारे लोग जो हमें दौलतमंद नजर आते हैं तो वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ऐसी है ना, देखते हैं ना, उन्हें बड़ा ही अच्छा सूट पाया, उन्हें 10-15 हज़ार का सूट लेके पाया, मैं भी इंज दा ही हुण पाना। ऐसे कहते ना। जो अरगवानी कपड़े थे, अरगवानी का मतलब है सुर्ख फूल का रंग, अरगवानी का मतलब है, तो वो जो कपड़े थे वो महीन कपड़े थे, वो बहुत ही अमीर तरीन लोग जो थे वो पहनते होते थे। तो आज जिस तरह हमारे इलाका के अंदर कोई अमीर शख्स हो, कोई दौलतमंद शख्स हो, तो वो भी बड़े अमीर घराने का हो, तो वो बड़े अच्छे कपड़े पहनता, तो हम उसको देख के कहते हैं, हम दिल में ख्वाहिश करते हैं कि काश मेरे भी पास बड़े पैसे हो, मैं भी बोस की दा सूट लेके पावा है। मेरे ख्याल से बोस की दा सूट इस टाइम पैसा बड़ा महंगा, ठीक है, तो हम ख्वाहिश करते हैं। मेरे जीजो, जिस बात पर मैं आज आपको लेकर जाना चाहता हूँ, जिस बात पर आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो दौलत
लिखा है और लाजर नाम एक गरीब नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। गरीब लाजर जो था नसूरों से भरा हुआ, देखें कि वो बीमारी के अंदर मुब्तला है, नसूरों से भरा हुआ है, यानी कि फोड़े फिंसरियां उसके जिस्म पर निकले हुए हैं और वो उसके दरवाजा पर डाला जाता है। और आगे लिखा है उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर चाटते थे। मेरे अजीजों, देखें कि वो बड़ा अमीर शख्स है और ये बड़ा गरीब शख्स है और ये उसके दरवाजा पर डाला गया है। अब उसकी गरीब शख्स जो है लाजर नाम, उसकी ये ख्वाहिश है कि इसकी मेज से कुछ चंद टुकड़े खाने के लिए गिरे और मैं उससे खाकर क्या करूं, अपना पेट भरूं। और वो तो बड़ा अमीर शख्स है, वो उसे खाने के लिए भी नहीं दे रहा। आज जिस तरह बड़े अमीर लोग हों तो उसके दरवाजा पर कोई गरीब डाला जाए तो उसे खाने के लिए भी ना दे तो फिर उसकी अमीरी का क्या फायदा है? क्या फायदा उस अमीरी का, क्या फायदा उस पैसे का, क्या फायदा उस दौलत का जो खुदा ने दी है, उस गरीब को नहीं वो दे रहा। वो नसूरों से भरा हुआ है, वो अपनी बीमारी के अंदर मुब्तला है और मेरे अजीजों इस बात की ख्वाहिश कर रहा है कि मैं इस मेज से टुकड़े जो गिरे उससे अपना पेट भरूं। और मेरे अजीजों आगे लिखा है और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। मेरे अजीजों, कुछ लम्हा गुजरने के बाद वो गरीब लाजर नाम जो नसूरों से भरा हुआ था, जो बीमारी के अंदर मुब्तला था, जो इस बात की ख्वाहिश में था कि इस मेज से टुकड़े गिरे और मैं उठाकर खाऊं। मेरे अजीजों, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि हर चीज का एक वक्त है, पैदा होने का भी एक वक्त है और मर जाने का भी एक वक्त है। और कुछ लम्हा गुजरा तो वो गरीब लाजर नाम शख्स मर गया। जब मेरे अजीजों वो गरीब लाजर नाम शख्स मर गया तो कुछ लम्हा गुजरने के बाद वो अमीर शख्स जो दौलतमंद था वो भी हुआ और दफन हुआ, यानी कि वो भी मर गया। तो मेरे अजीजों, अब अंजाम हमने देखना है कि जो मरे हैं उनका अंजाम क्या होता है, या उनकी तौबा है या नहीं। मैं जिस बात पर, जो टॉपिक हमारा जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि मौत से पहले तौबा। और आगे लिखा है उसने आलम अरवाह के दरमियान अज़ाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर के लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, देखें कि किस तरह जब फरिश्तों ने ले जाकर उस गरीब लाजर को बाप इब्राहिम की गोद के अंदर पहुंचा दिया, तो जब वो दौलतमंद शख्स भी हुआ और दफन हुआ तो वो जाकर क्या देख रहा है कि ये तो बड़ा गरीब था, ये तो नसूरों से भरा हुआ था, इसको तो बड़ी बीमारी लगी हुई थी, लेकिन ये बाप इब्राहिम की गोद के अंदर सुकूनियत कर रहा है और मैं इस गंधक की आग में जल रहा हूं। मेरे अजीजों, गौर करिए इस बात पर। और वो ख्वाहिश कर रहा है और उसको पुकार कर अब चीख कर कह रहा है, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। लेकिन उस पर रहम नहीं होता। उस पर क्या नहीं होता? और रहम नहीं होता, क्योंकि उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। मेरे अजीजों, आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपके पास वक्त है। आज खुदा का कलाम आपके आगे खुला हुआ है। आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है, क्योंकि खुदा कलाम है। हालेलुया। खुदा आपसे कलाम कर रहा है। खुदा कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। हालेलुया, हालेलुया। किस किस का खुदा ने फिदिया दिया है? हम सबका खुदा ने फिदिया दिया है। हम सबको खुदा ने मोल खरीदा है। मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके पास वक्त है कि हम खुदा के कदमों में झुक जाएं, खुदा के नजदीक आ जाएं, तौबा कर लें। बाजुकात मेरे अजीजों, बहुत सारे
کہ میں تھوڑا لمحہ ٹھہر کے توبہ کروں گا، ابھی تو میرے پاس بڑا وقت ہے۔ میرے عزیزو، ہر چیز کا ایک وقت ہے، لیکن اس چیز کا پتہ نہیں کہ وقت کب آ جانا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ وقت کب آ جانا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو وہ دولت مند شخص ہے، اب وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے باپ ابراہیم، اے باپ ابراہیم، مجھ پر کیا کر، رحم کر، کہ غریب لازر کو بھیج، کہ انگلی کا سینہ ہی پانی میں بھگو کر میری زبان کو کیا کر دے، تار کر دے۔ تو آگے سے باپ ابراہیم پتہ کیا کہتا ہے؟ 25 آیت سے ہم پڑھیں گے، لکھا ہے، ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر، بیٹا کیا کر، یاد کر، بیٹا کیا کر، تو یاد کر اس دن کو جب تیرے پاس موقع تھا۔ جس طرح آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو میرے عزیزو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ خدا کی نزدیکی حاصل کریں، آپ خدا کے قدموں میں آ جائیں۔ شاید آپ یہاں سے باہر نکلے تو آپ کے پاس موقع نہ ہو، شاید آپ یہاں سے باہر نکلے تو میرے عزیزو خدا میں سو جائیں۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے 1 منٹ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں میں مہینہ ٹھہر کے توبہ کر لوں گا، 1 سال ٹھہر کے توبہ کر لوں گا، ابھی تو میرے پاس وقت ہے۔ میرے عزیزو، کلام کے اندر لکھا ہے کہ موت کا ایک وقت ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کب آ جانا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ آمین۔ اب وہ یہاں پر کیا پاتا ہے؟ اب وہ یہاں پر کیا پاتا ہے؟ تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا خداوند یسوع نے اس لیے میری اور آپ کی جان کا فدیہ دیا کہ ہم اس گندک کی آگ میں جا کر جلیں؟ نیور۔ میرے عزیزو، خدا نے لکھا ہے کلام کے اندر کہ وہ ہماری کمزوریوں کو، بیماریوں کو، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے سولی پر چڑھ گیا۔ وہ میرا اور آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے۔ وہ آج بھی میرے اور آپ کے دل کے دروازہ کے باہر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ، اور آواز دے رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں تیرے دل کے دروازہ کے باہر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں کہ کوئی تو میری آواز سنے اور مجھے اندر آنے کی دعوت دے۔ آمین۔ میرے عزیزو، وہ آپ کے دل کے دروازہ کے باہر آج کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ ریولیشن 3:20 کے اندر لکھا ہے، مکاشفہ 3 باب اس کی 20 آیت کے اندر، کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے کے باہر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں کہ کوئی میری آواز سنے اور مجھے اندر آنے کی دعوت دے۔ لیکن میرے عزیزو، اسی تے اندر کنڈیاں لائیاں ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیزو، جو اندر سے کنڈی لگی ہوتی ہے نا، جس طرح ہمارے دروازے ہیں، گھر کی کنڈی ہوتی ہے، تو جب اندر سے لگی ہو تو جب باہر سے کوئی آتا ہے اس کا کام ہے جسٹ کھٹکھٹانا، تو جو اندر شخص ہوتا ہے وہی کھولتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو اندر کی کنڈی ہے وہ ہم نے کھولنی ہے، اور میرے عزیزو، یسوع کو آج اپنی زندگی میں آنے دے، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے پھریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت مند کی طرح ہم بھی اس گندک کی آگ میں جا کر چلیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے میری اور آپ کی جان کا فدیہ دیا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ آگے بڑھیں گے خدا کے کلام میں، اور آگے لکھا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج۔ اب میرے عزیزو، وہ جو دولت مند شخص ہے وہ درخواست کر رہا ہے، وہ ریکویسٹ کر رہا ہے، اے باپ ابراہیم، میں تیری منت کر رہا ہوں۔ پہلے باپ ابراہیم کہہ رہا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بڑا ایک گڑا واقعہ ہے کہ اب نہ تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں اور نہ تو اس طرف آ سکتا ہے، بیٹا تو یاد کر۔ اور مکاشفہ اس کا 2 باب اس کے اندر لکھا ہے کہ پس بیٹا یاد کر کے تو کہاں سے گرا۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، آج بھی یہاں پر خدا اسے کہہ رہا تھا کہ بیٹا یاد کر، بیٹا وہ دن یاد کر کے جب تیرے پاس موقع تھا،
जब तेरे पास वक्त था तो तूने वक्त को गनीमत नहीं जाना, तू मेरी हजूरी में नहीं आया, तूने अपने गुनाहों से नहीं फिरा। आज हम कहते रहते चलो असी दुआ भी करने हैं, चर्च भी जाने हैं, दायकी भी दिन्ने हैं, हदिये भी दिन्ने हैं खुदा दी हजूरी च। पादरी साहब घर आ जाते हैं, उन्होंने भी हदिया दिन्ने हैं। लेकिन मेरे जीजो जस्ट हदिया देने से, टाइम पर दायकी देने से आप बचेंगे नहीं, आप खुदा की बादशाही के हरगिज़ वारिस नहीं होंगे जब तक अपना दिल खुदा की हजूरी में नहीं देंगे। अपना दिल खुदा को दे। हाँ, हदिया देना, दायकी देना अच्छी बात है, खुदा कहता दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। लेकिन मेरे जीजो अगर दिल आपने ना दिया तो फिर मेरे जीजो वो तौबा के दरवाजे फिर बंद हो जाते हैं, तो फिर वक्त गुजर जाता है। और मेरे जीजो अब वो दौलतमंद शख्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब आप इब्राहिम मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू गरीब लाजर को मेरे घर में भेज। भाई क्यों कह रहा है? आगे पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि मेरे पास भाई हैं ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। ऐसा ना हो, कैसा ना हो कि वो अजाब की जगह में आए। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, अब उसको इस बात का पता लग गया है कि इत्थे कोई नहीं तौबा, ओथे जाके कोई नहीं तौबा, ओथे अमला दे होने नहीं नबेड़े है। सुनते हैं ना सी कदी किते, ठीक है। वाकई ही वहां पर जो आप जिंदगी के अंदर अमाल करते हैं, जो जिंदगी के अंदर आपके काम होते हैं, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु के नाम लगा देते हैं तो इस दुनिया के अंदर भी, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो जिन चीजों की तुम ख्वाहिश करते हो वो तुम्हें अनाम में मिल जाएगी। हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम दौलत के पीछे भागते हैं। मेरे जीजो यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर ले लें, क्योंकि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार उसे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार उसके पास है। तो जब जमीन और कायनात का बनाने वाला ही आपके अंदर आ जाएगा तो किसे शायद ही कमी रहती? पादरी साहब किसे शायद ही कमी रहती? किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो मेरे जीजो यीशु को अपनी जिंदगी में आने दे। तो वो अब रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पीछे भी 5 भरा है ने, बाप इब्राहिम इसको भेज दे कि ताकि उनको बता दे कि ओथे कोई नहीं तौबा, ओथे नहीं ताड़ी सुनी जानी, इत्थे ही दुनिया ते तौबा कर लो। आमीन। तो मेरे जीजो आज खुदा का कलाम आपके आगे खुला है, वहां पर तौबा के दरवाजे बंद हो जाने हैं। आज आपके पास वक्त है कि आप तौबा कर लें। और मेरे जीजो आगे चंद वर्ष हैं, हम पढ़ेंगे। इब्राहिम ने उससे कहा उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा नहीं। अब बाप इब्राहिम क्या कह रहा है कि उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उनकी क्यों नहीं सुनते भाई? जिस तरह आज खुदा के खादम, खुदा के सूर में खुदा ने अपने सूरमों को, अपने लोगों को, खादमों को इसलिए तैयार किया है, चरवाहों को इसलिए अपनी भेड़ों के लिए चुना है ताकि वो कलाम की हकीकी तालीम दे। तो भाई खुदा के खादम, खुदा के कलाम आज आपको कलाम सुनाते हैं। ये खुदा के खादम नहीं बोल रहे होते, बल्कि खुदा आपसे कलाम कर रहा होता है। लेकिन जो दुनिया जहान का खुदा है, जिसके बारे में लिखा है कि उसने इस जहान के खुदा ने अक्लों को अंधा कर रखा है, अक्लों को बंद कर रखा है, अक्लों पर पर्दा डाला हुआ है। वो कलाम की खुशखबरी की रोशनी आप पर पड़ने नहीं देता। मेरे जीजो उस पर्दे को अगर उठाना है तो आपको दुआ में झुकना होगा, आपको खुदा में यीशु के आगे झुकना होगा, आपको अपने गुनाहों से फिरना पड़ेगा। फिर वो इब्लीस के बंधन, वो जुए टूटेंगे और यीशु आपको बरकत देगा। मेरे जीजो आज खुदा के खादम आपको कलाम सुनाते हैं तो खुदा का कलाम आपके लिए खुला है। आपके पास आज वक्त है कि आप तौबा करें। और आगे लिखा है उसने कहा नहीं है बाप इब्राहिम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। अगों की कह रहे हैं गरीब लाजर दौलतमंद शख्स कि अगर मुर्दों में से कोई जी उठकर जाएगा ना तो उसकी बात मानेंगे। आज पालियां दी कोई नहीं गल कोई मानदा मुनदा, ठीक है ना। सारे अपने अपने
ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਾ कलाम ही साढ़े ते सुना के गए ने। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मानद है। खुदा का कलाम जब खादिम सच्चाई पर सुनाते हैं तो बाजुका लोग उनके मुखालिफ हो जाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों जो खादिम आपको सच्चाई पर कलाम सुनाते हैं वही खास खादिम है। आमीन। तो मेरे अजीजों, जब खुदा के खादम आपको कलाम सुना रहे होते हैं तो वो खुदा का पाक रूह आपसे बोल रहा होता है। तो मेरे अजीजों, वो कह रहा है कि अगर मुर्दियां दे विचों बाप इब्राहिम कोई जाके दसेगा ना ते फिर तौबा करनगे, ते मैं कहना जी मुर्दियां चों भी कोई उठ के आ जाए तो शायद साडे लोग फिर भी तौबा ना करें। वो कह रहे भी एवं गल्लां करन दे, हो सकदा साडे चों भी कोई मुर्दा आया होवे उठ के, हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है कि आज खुदा का कलाम आपके लिए खुला है, आपकी नसीहत के लिए। तो भाई खुदा आपसे कलाम कर रहा है, आज आपके पास वक्त है, आप अपने गुनाहों से फिरें, तौबा करें, यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर। फिर वक्त नहीं मिला, फिर वक्त नहीं आना आपके पास। और आगे लिखा है आखिरी आयत 31 आयत, उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। आमीन। मेरे अजीजों, जब वो मूसा और अंबियों की ही नहीं सुनते तो अगर मुर्दियां दे विचों भी कोई उठ के आ जाए ते उन्हां दी भी ना मनणगे। ते आज खुदा दे खादम भी चीख चीख के पुकार के खुदा दे कलाम नूं तुहाडे तक पहुंचाते हैं। खुदा के कलाम को आज आप तक पहुंचाया है, ये खुदा का प्लान था। मेरे अजीजों, जब हम सुबह आए, हम रात वक्त बहुत सारा हमने सफर तय किया 6 घंटे, जिस तरह पास्टर बाबर साहब ने बताया। तो पास्टर बाबर साहब कह रहे थे कि आप रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर से खुदा का रूह आ रहा था कि आज मैंने अपने लोगों से कलाम करना है। आज तूने खुदा के घर में जाना है, मेरे घर में जाना है, मेरी आइकल में जाना है और मेरे लोगों को इस बात से, इस कलाम से आगाह करना है। मेरे अजीजों, तो फिर मैंने कहा कि जस्ट 15 मिनट रह गए। भाई साहब ने कहा फिर उठो भाई साहब। मैंने कहा कि भाई साहब ने कहा था कि आप कलाम शेयर करें। मैंने जस्ट 10-15 मिनट पहले इनको बताया और ये खुदावंद की मैं समझता हूँ कि मर्जी थी कि खुदा ने इस कलाम को आज आप तक पहुंचाना था। सो मेरे अजीजों, आज हमारा टॉपिक क्या था कि मौत से पहले तौबा। तो मौत से पहले ही तौबा है। आपने कलाम को बड़ी बाखूबी, बड़े अच्छे तरीके से, मेरा ईमान है कि आपने सुना है और समझा है और आपने अपने दिलों में इसको उतारना है और इसके वसीला से आपने क्या करनी है, बरकत पानी है। आमीन। तो मेरे अजीजों, मौत से पहले तौबा है। आज अपनी जिंदगियों के अंदर झुके, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। सब आंखें खुदा की हजूरी में बंद हो जाए। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदावंद आज इस कलाम को आपकी जिंदगियों के अंदर, आपके दिल के अंदर कायम कर दे और इस पर अमल करने का फजल बख्शे और आपको तौबा करने की और अभी से खुदावंद की हजूरी में झुकने की तौफीक दे। और जो जो लोग आज खुदावंद की हजूरी में झुकना चाहते हैं, जो तौबा करने चाहते हैं, वो खुदा को पुकारना शुरू करें, खुदा को कहना शुरू करें कि आए खुदावंद, मेरी जिंदगी के अंदर जो गुनाह हुए, मैंने अपनी जिंदगी को किस भी तरीके से गुजारा या गुजारता रहा, जितना भी मेरा माजी गुजर चुका है, आए खुदावंद पाक खुदा मुझे माफ कर। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा कहता है मैं तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादलों की मानद मिटा डालूंगा और मैं उनको कभी याद ना रखूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद की हजूरी में झुके, खुदावंद को पुकारना शुरू करें। खुदावंद आज आपके दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि कोई तो मेरी आवाज सुने और मुझे अंदर आने की दावत दे। हालेलुया, हालेलुया। और इस संतोरो लो बोलो योरो लो मंतो सोरो रब्बा लाजारा ला जंतारा ला शंतारा ला बाला जारा ला रियंतोरो लो बोलो जोरो लो मंतो सोरो रिसा थंतोरो लो बोलो योरो लो रब्बा लाजारा ला जंतारा ला शंतारा ला बाला जारा ला। आए खुदा पा खुदा, जितनी जिंदगियों ने आज तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुना, जो तेरा कलाम जिंदगी देता है, खुदावंद तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग
اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے خداوند آج کے کلام کا جو بیج بویا گیا ہے ان کی زندگیوں کے اندر بڑا پھلدار ثابت ہو۔ آج خداوند یہ توبہ کریں اور رجوع لائیں، کیونکہ موت کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے، موت سے پہلے ہی توبہ ہے۔ خداوند ان تمام زندگیوں کا فضل بخش کہ یہ آج ہی ابھی اسی گھڑی سے اپنی زندگیوں میں تجھے قبول کریں اور تیرے یسوع نام کو ویلکم کریں اور تو ان کی زندگیوں کے اندر آئیں، تاکہ جب تو ان کی زندگیوں کے اندر آ جائے تو ان کی زندگیاں تیرے روح سے معمور ہو جائیں، ان کی زندگیاں تیرے برے لہو سے دھل کر پاک اور صاف ہو جائے۔ خدا پاک خدا ان کے تمام خطاؤں کو اپنے برے کے لہو سے مٹا ڈال اور خداوند انہیں فضل بخش کہ تیری راہوں میں بڑھیں، تجھ میں ترقی پائیں، اطمینان پائیں، تیرے روح کے پھل، تیری روح کی نعمتیں ان کے اندر ظاہر ہوں، ان کے اندر نظر آئیں، اور ایک ایک بیٹی کے لیے، ایک ایک بھائی کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، تیرے خادموں کے لیے بھی تیری برکت چاہتا ہوں۔ اور خداوند آج تو نے مجھے بھی اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور خدا پاک خدا ان زندگیوں نے جنہوں نے آج اپنے دل کو تیری حضوری میں ڈھیلا ہے، کھول دیا ہے، خداوند میرا ایمان ہے کہ انہوں نے تجھے اپنے اندر ویلکم کر لیا ہے۔ خدا پاک خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند ایک ایک زندگی کو چھونا اور بڑی برکت دینا، تیرے مسیح یسوع کے قادر نام میں مانگتے اور بڑے ایمان سے پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ تھینک یو جیسس۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگوں نے آج کلام کے وسیلہ سے برکت پائی؟ یقیناً سبھی نے پائی ہے۔ خدا کے خادم کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجا دیجئے، کیونکہ میرے عزیزوں بڑا خوبصورت ٹاپک تھا کہ موت سے پہلے توبہ ضروری ہے، موت کے بعد توبہ کسی پر واجب نہیں ہوئی۔ اور خدا کا بندہ داؤد بھی کہتا ہے کہ کون ہے جو قبر میں خدا کی شکر گزاری کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس زندگی ہے، وقت ہے، خدا کا دیا ہوا ٹائم ہے، اس ٹائم کو اور آپ جب اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں گے تو یقیناً آپ کا اور میرا خدا بھلا ہے، وہ آپ کو اور زیادہ برکتوں سے مالا مال کرے گا، آپ کو توفیق دے گا کہ آپ توبہ کر سکیں۔ ہاللیلویا۔ تو آئے میرے عزیزوں، ہم اپنی عبادت کا آخری گیت گائیں گے، اسی کے دوران خدا کے دیے ہوئے میں سے ہم خداوند کی حضور دیں گے تاکہ انجیل کی بشارت کے کام کو کیا جائے اور اسی کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ ہاللیلویا۔ تو آئے ہم قواعد کے ساتھ مل کر گاتے ہیں۔